الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا شفيع المذنبين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن في المسجد كالسمك في الماء والمنافق في المسجد كالطير في القفص. صلوات محمد ہمارے اور آپ سب حضرات کی یہ قم المقدسہ کی آخری زیارت گاہ ہے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی حدیث سے جو ہے وہ آغاز کیا ہے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ مسجد کی اپنی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے، کیا اہمیت ہوتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے سید المرسلین خاتم النبیین ملقب طہ یاسین حضرت ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نورانی بیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ المؤمنو، او بھائی لوگ ادھر آ جاؤ، پھر بعد میں پوچھو کہ کون سی جگہ پہ تھے۔ المؤمنو فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسا ہے جیسے مچھلی پانی میں۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں المؤمنو فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں کیسا ہے جیسے مچھلی پانی میں۔ والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اور منافق مسجد میں کیسا ہے جیسے کوئی پرندہ پنجرے کے اندر ہو۔ الغرض رسول اسلام اپنی اس حدیث سے بیان یہ کرنا چاہتے ہیں اور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے پانی مچھلی کے لیے حیات ہے، پانی مچھلی کی زندگی ہے، پانی مچھلی کے لیے جیون ہے، اسی طریقے سے مسجد مومن کی حیات ہے، مسجد مومن کی زندگی ہے۔ اور جس طریقے سے منافق کو کبھی آپ دیکھیں وہ مسجد میں نہیں آتا ہے، جب بھی آتا ہے تو وہ زبردستی آتا ہے، جبرن و قہرن آتا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اسلام بیان فرما رہے ہیں کہ پرندہ کوئی بھی پنجرے میں اپنی مرضی سے نہیں آتا ہے، اگر وہ آ بھی جاتا ہے تو وہ جانے کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ تو منافق ایسا ہے جب وہ مسجد میں آتا ہے تو ٹھہرتا نہیں ہے، وہ باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈتا رہتا ہے، لیکن مومن مسجد اس کے لیے حیات زندگی ہے۔ ہم اور آپ جس جگہ تشریف لائے ہیں یہ مسجد ہے، مسجد مقدس جمکران۔ کسی بھی زائر یا زائرہ کے ذہن میں یہ گمان نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ یہاں سے امام زمانہ ظہور کریں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ مسجد منسوب ضرور ہے امام زمانہ سے، لیکن آپ اور ہم سب ہمیشہ سے علماء کی مجلسوں میں سنتے چلے آئے ہیں کہ جہاں سے امام زمانہ علیہ السلام ظہور کریں گے وہ خانہ کعبہ کی دیوار ہے، جہاں سے ٹیک لگا کر کے آپ ایک آواز بلند کریں گے، زہرا کے لال کی آواز میں وہ تاثیر ہوگی کہ ہر انسان اپنی زبان میں اس آواز کو سنے گا اور امام کی نصرت کے لیے دوڑے گا۔ لہٰذا اس مقام پر ہم یہ دعا کریں گے مولا جب بھی آپ کا ظہور ہو یہ زائر اور زائرہ آپ کے ناصروں میں ان کا شمار ہو۔ یہ مقدس جمکران منسوب کیوں ہیں؟ بھائی کوئی تو ایسا ٹھکانہ ہونا چاہیے نا کہ جہاں بیٹھ کر کے ہم اپنے وقت کے امام کو یاد کریں۔ مولا آج کے اس پرتشدد ماحول میں کہ جہاں ہم پر ظلم ہو رہا ہے، جہاں ہمیں ستایا جا رہا ہے، ہم اپنے استغاثے کو لے کر کے آئے ہیں۔ مولا ہم اپنی پریشانیوں کو لے کر کے آئے ہیں، ان سے التجا کریں گے، التماس کریں گے، مناجات کریں گے، استغاثہ کریں گے۔ جب ہم خدا کے بارگاہ میں ولی خدا کو حوالہ دے کر کے پکاریں گے تو کیا ہماری دعا رد ہوگی؟ نہیں، ہماری دعا باب اجابت سے ٹکرائے گی۔ یہ مقدس جمکران بنایا اس لیے گیا ہے۔ حسن بن مسلح کہتے ہیں، حسن بن مسلح بیان فرماتے ہیں کہ دوشنبہ یعنی پیر کا دن گزار کر کے
रात का वक्त था, हम अपने कमरे में अपने घर में यही इसी जगह पर मस्जिद मुक़द्दस जमकरान जहाँ बना है, ये मोहल्ला है जमकरान, पूरे मोहल्ले का नाम क्या है? जमकरान। हसन बिन मुस्ला कहते हैं कि मैं रात बहुत सर्द थी, मैं अपने कमरे में आराम फरमा रहा था, इसी असना में कुछ लोग मेरे दरवाजे पर आए और आने को दस्तक दी है, और दस्तक दिए तो मैं बाहर निकला तो बरजस्ता लोगों ने कहा चलो तुम्हें वक्त के इमाम ने बुलाया है। बस इतना सुनना था कि मेरे रोंगटे जो हैं वो खड़े हो गए और अजीब सी मेरे पास कैफियत तारी हो गई कि मैं कहाँ, वक्त का इमाम कहाँ, और उसके बाद मुझे यकीन नहीं आ रहा था। तो इसी जगह पर ले कर के आए हैं कि जहाँ आज मस्जिद मुक़द्दस जमकरान का गुंबद बना हुआ है, इसी जगह पर बोले जब मैं आया हूँ तो मैंने देखा कि एक तख्त है, उस तख्त पर 1 साल का खूबसूरत जवान जलवा अफरोज़ है। बस जैसे ही मैंने देखा कि खूबसूरत जवान है, अभी मैं बढ़ना ही चाह रहा था, इतने में उस जवान ने कहा हसन बिन मुस्ला ज़रा मेरे करीब आ जाओ। उस वक्त मुझे यकीन हो गया कि इल्म गैब रखने वाला सिवाय हमारे इमाम के कोई और हो ही नहीं सकता है, लिहाजा वो मेरा वक्त का इमाम है जिसने मुझे तलब किया है। उसके बाद देखा कि वहाँ पर एक ज़ईफ़ुल उम्र शख्सियत नूरानी चेहरा बैठी हुई कुछ किताब को मुतालिया कर रही है। जब बढ़ करके मालूम किया तो वो कौन थे? जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम थे। अब आप बताइए ज़ायरीन और ज़ायरा कि हमारे कितने नबी अभी बाहयात हैं, कितने प्रोफिट्स हैं जो अभी लाइव ज़िंदा हैं? वो 4 पैगंबर हैं जो अभी ज़िंदा हैं, बताइए नाम उनके चारों के। जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम 1, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम 2, जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम और जनाब इलियास अलैहिस्सलाम, ये 4 पैगंबर हैं जो ज़िंदा हैं। ये क्वेश्चन भी है ताकि हमेशा आप अपने बाद वालों को भी जो है बताते रहें। जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम पानी में अगर कोई डूबता है तो रहनुमाई करते हैं, बचाते हैं। जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम जो हैं वो जंगलों में जो है जब कोई रास्ता भटक जाता है तो उसकी हिदायत करते हैं। जनाब इलियास अलैहिस्सलाम पहाड़ों की बुलंदी पर अगर कोई फंस जाता है तो उसकी रहनुमाई करते हैं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जो चरखे चहारों के ऊपर हैं, बैत मामूर पर हैं, वो ये 4 हमारे नबी हैं। जब फातिमा ज़हरा का लाल ज़ुहूर करके इस सहने कायनात में आएंगे तो उस वक्त जनाब मरियम के फ़र्जंद तशरीफ़ लाएंगे, वो मुक़ब्बिर होंगे, मामूम होंगे, ये अंबिया सफ़ूफ़ में खड़े होंगे और सैयदा का लाल इमामत फरमाएगा। ये निज़ाम इलाही है। ये जब अंबिया आकर के इक़्तिदा करेंगे तो क्या हमारा फ़रीज़ा नहीं है कि हम इमाम की इक़्तिदा में आ जाएं? क्या इमाम की बातों को मानें? ये ज़रूर है। हमारे इमाम ऐसा नहीं कि हमसे दूर है, नहीं, आले बैत एक लम्हे के लिए भी अपने चाहने वालों से दूर नहीं है। ये ख़ुद इमाम का कहना है, हमारे शियों हम तुमसे बहुत ज़्यादा करीब हैं, हम तुमसे बहुत ज़्यादा करीब हैं, बस तुम्हारी निगाहों के ऊपर ये गुनाहों के पर्दे पड़े हुए हैं जिसकी वजह से कमरे इमामत की ज़ियारत हमें नहीं हो पा रही है। नहीं तो ज़हरा का लाल हमारे सामने है। आप देखें जब भी हमारा बच्चा गिरता है किसको पुकारता है? या अली पुकारता है, या हुसैन कहता है, हमारे आइम्मा का नाम लेता है। सबसे ज़्यादा इस ज़माने में जो अगर ज़रूरत है तो या लब्बैक या मेहदी का नारा करबला में क्यों लगाया जाता है? चूँकि इतने जुल्म हम पर ढाए जा रहे हैं, एक ही मुंजी आलम बशरियत है जो आकर के लोगों को नजात दिलाएगा, ये सब मानते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी फजीलत तो इमाम ज़माना की यही है कि कोई किसी भी फ़िरक़े का हो, भाई मौलाए कायनात की खिलाफत पे इश्काल हुआ, लोगों ने हक़ मार दिया, शहज़ादी दरबार खिलाफत में गई अपना हक़ मांगने के लिए, अपना फ़िदक मांगने नहीं गई थी। फ़िदक तो एक मुक़द्दमा था, असल में अली इब्न अबी तालिब का जो हक़ मार दिया गया था उसके लिए पेश ख़ैमत और फ़िदक कि आज अगर फ़िदक दे देंगे तो कल अली को खिलाफत भी सौंपनी पड़ जाएगी, इसलिए शहज़ादी दरबार में गई। लेकिन इमाम ज़माना के खिलाफत में किसी को इश्काल नहीं है। अहले सुन्नत कहते हैं कि पैदा होगा, हिंदू कहते हैं कि एक शख्स जो वो आएगा, हम कहते हैं पैदा हो चुके हैं, पर्दे गैब में हैं। यानी सारे फ़िरक़ व मज़ाहिब इमाम ज़माना की खिलाफत को तस्लीम करते हैं। सब कहते हैं मेहदी मऊद आएंगे और कायनात को अदल व इंसाफ से
भर देंगे। खुद इमाम ज़माना का ये कहना है कि मेरे शियों तुम मुझे पुकारो, मैं तो तुम्हारी पुकार पर लब्बैक कहता हूँ। और ये हकीकत है, आज अगर हम चैन और सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, तो हमारे पीछे फ़ातिमा ज़हरा के लाल की दुआ है, जिसकी वजह से हम सही और सालिम हैं। और याद रखिएगा, क्यों ना हम इमाम ज़माना को पुकारें। अरे ये तो सीरत जनाब सैयदा है। जब पहलू शिकस्ता हुआ था, हज़रत मोहसिन की शहादत वाक़ई हुई थी, तो अली को नहीं बुलाया था। लोग मुश्किलात में अली इब्न अबी तालिब को बुलाते हैं, लेकिन ज़हरा ने एक फ़िक्रा कहा था, मेरे लाल मेहदी मेरी मदद को आ जाओ, मेरे लाल मेहदी मेरी मदद को आ जाओ। इमाम ज़माना को याद किया था कि शहज़ादी मैसेज देना चाह रही हैं कि मुश्किलात अगर आ जाए तो मेरे बेटे मेहदी को फरामोश न करना, उसे याद करना, वो तुम्हारी इमदाद को ज़रूर आएंगे। लिहाजा वो मस्जिद मुक़द्दस जमकरान कि जो इमाम ज़माना से मुख्तस है। और आज भी इमाम ज़माना का वो कौल याद करिएगा कि वलाउ अन्ना अशिया अना ले हम, अगर ये हमारे शिया अगर एक होकर, अगर मिल कर के एक प्लेटफार्म पर अगर आ जाते, तो फिर हमारी बाबरकत मुलाकात में देर न होती। ये ख़ुद इमाम ज़माना का कौल है। हमारे शिया एक होकर, एक प्लेटफार्म पर अगर होकर के आ जाएं, तो हमारी बाबरकत मुलाकात में फिर ये ताख़ीर ना हो। लिहाजा परवरदिगार आलम ने हमें ये मौका अता किया है कि हम जनाब ज़हरा के इस लाल के यहाँ आकर के उनसे मंसूब मस्जिद में इस्तिग़ासा करते हैं। और हमारी दुआ यही है कि परवरदिगार रोज़े अरबईन हम सब को करबला की ज़ियारत नसीब फरमा। ऐ इमाम ज़माना, जो लोग किस्मत के सताए हुए हैं, दूर दराज से आए हुए हैं ज़ायरीन, न जाने अपनी मुरादें लेकर के आए हैं, मन्नतें लेकर के आए हैं, इस्तिग़ासा लेकर के आए हैं। हो सकता है हमारी फ़ैमिली में बहुत से लोग मरीज़ हैं, आपकी फ़ैमिली में बहुत से लोग मरीज़ हैं। परवरदिगार ने हमें ये मौका अता किया है, इमाम ज़माना से इस्तिग़ासा करते हैं। परवरदिगार उन सब को शिफ़ाए कामिल व आजिला अता फरमा। और इमाम ज़माना जल्लल्लाहु फ़रज शरीफ के दयार में हम मस्जिद मुक़द्दस जमकरान में हैं। हमारे पास 2 अमाल हैं करने को, यानी 4 रकात नमाज है। 2-2 रकात करके है। जो लोग आए हुए हैं वो जानते हैं, फिर से सुन लें। जो लोग पहली बार हैं उनके लिए तक़वियत के लिए है कि इस अमाल को यहाँ अंजाम देना होता है, इस्तिग़ासा करना होता है, और उसके बाद इंशाअल्लाह वो दुआएं जो हमारी मुस्तजाब हो जाया करती हैं। सबसे पहले 2 रकात नमाज तहय्या मस्जिद के उन्वान से है। 2 रकात नमाज हदिया मस्जिद। भाई छठे इमाम पुराने नातिक हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तुम किसी भी जगह पर चले जाओ, किसी भी नई जगह पर जाओ, तो जाने के बाद एक काम ज़रूर करना, 2 रकात नमाज उस जगह पर ज़रूर पढ़ना। ये छठे इमाम ने फरमाया है, 2 रकात नमाज उस जगह पर ज़रूर पढ़ना। क्यों? उसके बाद मौला फरमाते हैं, तुम पढ़ करके भूल जाओगे, लेकिन ज़मीन को इतना शऊर है, रोज़े क़यामत ये गवाही देगी, परवरदिगार इसने मेरे सीने पर नमाज अदा किया है, लिहाजा इसके गुनाहों को बख्श दे। ये ज़मीन कहेगी, इसको इतना शऊर है। लिहाजा छठे इमाम की हदीस से भी रोज़े और मस्जिद मुक़द्दस जमकरान के रोज़े अगर देखा जाए तो 2 रकात नमाज हदिया मस्जिद मुक़द्दस जमकरान पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ मैं क़ुर्बतन इलल्लाह। पहली रकात में सूरह अल-हम्द पढ़ना है 1 मरतबा, और उसके बाद 7 मरतबा सूरह तौहीद, सूरह कुल वल्लाहु अहद पढ़ना है। उसके बाद रुकू में जाएंगे तो 7 मरतबा सुबहाना रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, और सजदे में जाएंगे तो 7-7 मरतबा सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दे। ये हो गई पहली रकात। दूसरी रकात में जो है इसी तरीके से सूरह अल-हम्द 1 मरतबा है और 7 मरतबा सूरह कुल वल्लाहु अहद है। उसके बाद रुकू में 7 मरतबा है और 7-7 मरतबा सजदे में है। ये 2 रकात नमाज की हदिया मस्जिद है जमकरान के नाम से। अब 2 रकात नमाज है इस्तिग़ासा इमाम ज़मान कि जिसके लिए हम इस मस्जिद में आए हैं अमाल अंजाम देने, जिनसे कि हम दुआएं तलब करने आए हैं, अपनी मुश्किलात को लेकर के हाजिर हुए हैं। तो 2 रकात नमाज इस्तिग़ासा या मुनाजात इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के नाम से पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ मैं क़ुर्बतन इलल्लाह। इसकी नमाज की कैफियत ये है कि नियत करने के बाद जब हम और आप सूरह अल-हम्द को स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। ये 3 आयत के बाद जब चौथी आयत पर आएंगे वो क्या है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो पूरी एक तस्बीह हम पढ़ेंगे।
पहली रकात में इस सूरे को जब शुरू करेंगे, इस 3 आयत के बाद जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर आएंगे तो एक तस्बीह हम पढ़ेंगे, उसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिर उसके बाद सूरे को मुकम्मल करेंगे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उसके बाद एक मरतबा जो है वो सूरे तौहीद कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत होगी। उसके बाद रुकू में वैसे ही 7 मरतबा है, दोनों सजदों में वैसे ही 7 मरतबा है। दूसरी रकात के लिए जब खड़े होंगे तो उसी तरीके से पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जब पढ़ेंगे तो एक पूरी तस्बीह पढ़ेंगे 100, उसके बाद सूरे हम्द को मुकम्मल करेंगे और एक मरतबा सूरे तौहीद पढ़ेंगे, फिर रुकू में 7 मरतबा और दोनों सजदों में 7-7 मरतबा। ये नमाज हो गई हमारी तमाम। अब नमाज के बाद हम कहेंगे एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद एक तस्बीह हम पढ़ेंगे जनाब फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की, उसके बाद सर को सजदे में रख करके अहले बैत के ऊपर एक तस्बीह सलवात पढ़ेंगे। जब सजदे में सलवात पढ़ लेंगी तब आपका मस्जिद मुक़द्दस जमकरान का यह अमाल ख़त्म हो जाएगा। और इसी के साथ हम दुआ गो हैं, परवरदिगार हम सब के अमाल सालहा को कबूल फरमा, हमारे गुनाह सगीरा कबीरा को बख्श दे।